So what is string? A string is actually, I told you last time, a string is actually sequence of alphabet. And we have learned two important functions in the string. Like one is index of. And what is the use of index of? You can give the character within your string and it will return the index. Second, you have learned the char at. What is the use of char at? You will give the index and in the return it will return the character available at that particular index. Other than that, we are going to learn few other things today. str1 dot. So one by one, I will try to show you each and every important function. There are a lot of things, but we are going to handle important ones. Now, the second important function is called concat. What is called? Concat. So what is the use of concat? For example, what happens? You have one string str1, and let me take the example of one more string like string str2. Okay, and I want to I've written two string. I'm writing something here. So for example, I want to make a concatenation of these two strings. Anybody know what do you mean by concatenation? Appending another string after the first one. That is called concatenation. So I want to write this string tea coffee. So we are using operation string one, that is T concat, and we will pass another string like str2. Getting my point? And what is the return type of concat function? Tell me, what is the return type? String. So we can store in the string string and will make a variable final string. I'm just taking a variable so that you can make it meaningful. I'm going to print it this in my SOP and you will see what will be the answer. What will be the answer? Tea coffee. Tea coffee. Now, because this function is available in the string, that's why I'm telling you about it. Otherwise, in our practical life, we never use the concat. If you want to use the concat, you can do one thing. Just see here. I'm going to make this comment and I can use the plus operator. Plus operator. So, okay. So this is actually plus operator is a little bit fast in comparison to function str1 plus str2. I will give you the another advantage of that. You can see if I'm writing str1, str2, it is similar like concatenation. Getting my point? Okay, now tell me one thing. I want to write tea space coffee. How we can write in the second approach? How we can write in this one? Anybody know? Break. Yes. We can write str1 plus, we can add a space, something like that. Then we plus. Now you can see how easy it is. How easy it is. And then same thing I will show you in the function. Now you achieve it easily. But if you want to achieve it with the help of concatenation, it will be little bit complex. Little bit complex means str1, first of all, concat, double quotes. Yes or no? Yeah. Then again call dot and call concat, again write str2. So you can see why you are writing a complex code of that. You can simply write str1 plus. So that is more easy, yes or no? That's why from the knowledge perspective, you should know what is the concat function. Otherwise, how you use the concat? str plus operator you have to use. Getting my point? Yes. And what is the benefit of plus operator also? You can use a prefix also. You can use a suffix also. Concat is always going to append after. But in the concat, in the plus operator, you are not bind. You can write str2 plus 1. Getting my point, yes or no? Yes. Yes. Great. So now we'll come to the next one by one. We will learn each and every good topics here. str1. We have learned this thing, concat. After concat, let me write contains. Contains is very, very important. Whatever function I'm going to tell you, every function is used in your automation. Contains. Anybody can guess? What do you mean by contains? String can have substring. Yes, a string can have some string. So it is going to check whether str1 within the pattern of str1 or within the sequence of str1, str2 sequence exists or not. So I can take the example here. Let me take the example of here, P-R-A-D-E-E-P, Pradeep. And in the str2, I'm writing D-E-E-P. Now tell me one thing. This sequence str2, are you able to see within the str1? Yes or no? Yes. Yes, you are able to see the whole sequence is available D-E-E-P. So if you will give the answer, what will the return type of contains? Boolean. What is the return type of Boolean? So Boolean is actually a data type which is used to store single answer, yes or no. Yes is known as true and no is known as false. False. So I'm giving a meaningful variable is
contains. You can take any variable, is exists. Okay, you can take the example, is exists also. Don't go with the same name, is exists. So you will see, in the current scenario, what will be the answer? True or false? True. Very good. You guys are awesome. Now, if I'm going to write, instead of DEE, I'm writing a DEEP. Now tell me, answer will be right or wrong? Wrong. Wrong, because it is going to check whether the whole sequence should be there. You will say DEE is there, but after that it is expecting the whole sequence should be as a part of substring. If it is not, answer will be false. False. Getting my point? Yes. Okay, now here you will see one more interesting thing. Here I'm writing Pradeep and here I'm writing Deep, but this time I'm writing D in capital. Guess. What will be the answer? False. Guess. False. Getting my point? It means Yeah. because the thing in the sequence, I told you, one thing is called case Case sensitive. sensitive. Okay, so sometime you have to understand that what things are case sensitive, what things are not. Yeah, Manjuna, tell me, you want to ask anything? Yeah, yeah, tell me, Manjuna. Pradeep, so in Boolean, you told, right, you're checking that sequence like value. Yes. So you use contents, right? Contents, it will check the only character text, or how it's work? Like, No, it is checks the whole sequence. Like it is checking that you are checking str. Within the str, it should have the whole pattern of str2. Means this whole pattern should be available in this first string in one go. It is not something like that. DEE is available here and P is available something here. The same sequence should be available in the first one. Getting my point? okay. And the same time, it should be case sensitive also. You can see DEE is available here. DEEP, it is DEEP, it is available here. But here the D is small and here D is capital. So it is giving the answer false. False means it is not available. Getting my point? Okay. Great. Now, so every time anybody want to ask, you can ask a question. Now, str1 chart. We have learned this thing. Now we can say ends with. Anybody can tell me the ends with? It's self-explanatory. You can say function name is self-explanatory. You should give the answer. str1 ends with. मतलब क्या होगा? कुछ सोचो? Ends with Ends with a specific string or Yes. It is saying that str should be end with the str2. Means in the str1, the last pattern should be str2. So here you can say, if I'm writing it deep, answer will be Pradeep is ending with deep, yes or no? true. Yes. True. But if I will write Pradeep is ending with Jeep, no. Getting my point? If I will write Pradeep is ending with EEP, True. true. You guys are awesome. So you got the point. Ends with means the str2 should be the last pattern of the string. In the same way we learned str1 dot starts with. What do you mean by starts with? It starts with the string. The pattern should be in the starting, right? Yeah. So you will see here. Here, if I will try to run the same thing with start with, the answer will be Answer will be true. Where I've written? Oh, sorry. It starts with here written. What I've done? Sir, str1 dot start with str1. Oh, sorry. That's what I'm saying. Why it is giving the wrong answer. str1 the str2. Let me run it. Yes, false. If I will read PRA, what will be the answer? True. True. If I will write small PRA, False. False. you guys are awesome. It means you are getting it. Great. So why I'm taking so much time on this class? Trust me, string is a class which is widely used in the development as well as in the automation. We have ends with. Now we are going to talk about equals. Equals means, yeah, tell me. Yeah. Sir, in start with, if we take middle value, what will be the answer? False. Reason is that
it is going to check whether str1 should start with the str2 pattern. If you are saying that, for example, you are writing RAD. RAD. Mhm. RAD is available in the mid, yes or no? Yes. So it is checking str1 is starting with RAD. No, it is starting with PRAD. Yes or no? And you can see the answer. Getting my point? Yes. Yes. Now we are going to learn equals. Equals is very important. To str1 is equal to str2. Equal है नहीं है? No. अब यहाँ पे बहुत interesting चीज. Let me write Pradeep here. The answer will be True. True. And if I write a small Pradeep, False. False. very good. Now you guide us. Okay. Now you will see. If you want to, in case of, especially in case of equals, you want to compare two strings, equality, and you want to ignore the case. There is a special function for that. That is called str1 dot equal ignore case. Are you able to see this one? Yes. So the purpose of this function is that you want to check the equality of two strings, but you want to ignore the case. If case is different, it is going to consider the same. Let me run it. Here you can say it is capital Pradeep, small Pradeep. Answer will be true. Got it? So in the automation, it is widely used. Now let me come to the next point. str1 dot. We have learned ends with, we have learned equals. Let me check what are the other important things. Index of you have learned. Okay, I have told you about the index of only one variant. There is one more in. Okay, I have told you about the index only one variant or multiple variants. Okay, let me show you where I have not told you this thing. I'm using str.index of, I'm using, suppose, D. The return type will be int. Integer. Yes. So I have already declared a variable above. Let me use it here. Index. I don't need to declare it. I can use it. And let me put that. What will the answer? Tell me. क्या answer होगा इसका? 3. इसको मैं let me remove this line so that you can find it easily. है ना? सब लोग देख पाएं easily. So let me run it. Very good. Now you see, if I will ask the answer E, क्या मिलेगा answer? 4. So I will get the answer 4, but there are two E's. 0, 1, 2, 3, 4. We are getting the 4. Now tell me one thing. If we want to get this E, how we can get the index of second E? I want to get the index of second E in my string. I have told you about this thing, yes or no? Yes or no? बिल्कुल शांत हो जाते हो क्यों? और यार कहीं गलती से ये ना बोल दे कि नहीं पढ़ाया है तो I don't remember. I don't remember. Say yes. I'm not sure. It is a place where you have not only give the answer yes or no. You can be in this way. You can friendly with us that okay, yes or no. We do not know. Okay, so here you will see there is another version of index. You will see you will write here index of, you will see it is taking two parameters, index of, from index, two things. Yeah. So what is the benefit of is that first of all you can give the index, like you can give the character E, and you can start with from where it should start searching. So if I will write 5, I will write 5. It will start searching from 5, and when it start from 5, what will be the value of index of E? 5, because it will start with this one. And let me take the example something different. I will take the example of, let me write it Pradeepa. If I'm using the default part, this one A, what will be the answer? The last index. No, first it will give, when I will say it will give 0, 1, 2, it will consider this A, right? If we if you want to get the second occurrence of the A, so it at least means we have to ignore this A. So this is available at 2. So we will start searching from 3 or 4, whatever you want to ask. Let me run it. So it will give the index this time 7. 7 means now it will give the position of this one. Getting my point? Yes. So this is the benefit of that. In the interview, they can give you so many programs, like something like that.
Okay, here you are writing the starting value of 4 because you know that this first thing is coming at place of 3. Yes or no? Now tell me, can Yes. you write a dynamic program that whatever character I will give you, can you get me the index? I don't need to write a hard-coded value here. First one. I want the second occurrence of a character. Can you write a program? अभी मैंने आपको इंडेक्स के 2 फ्लेवर बताए हैं, उसी का यूज करना है. क्या फ्लेवर था? You can get the character index and then you have to choose to give the position also. कोई मुझे बताएगा? Anybody want to try? सोचो सोचो. अच्छा यहाँ पे मुझे सेकंड अकरेंस निकालना है ना सर हमको. हाँ सेकंड अकरेंस निकालना. फर्स्ट अकरेंस निकालेंगे, उसको सेकंड पैरामीटर में डाल देंगे. वेरी गुड, उसका +1 करके आई थिंक. क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग, एक्सीलेंट. हमें क्या करना था? दिस फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग यू हैव टू गिव द कैरेक्टर एज वेल द स्टार्टिंग पॉइंट. हमें किसी तरह अपना पहले अकरेंस का स्टार्टिंग पॉइंट को आगे बढ़ना है. तो पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फर्स्ट पोज इंडेक्स. फर्स्ट इंडेक्स निकालते हैं किसकी? एक. तो केवल ये प्रोग्राम लिख देंगे. यस और नो? यस. हाँ जी. Yes. इससे क्या मिलेगा? इससे इन दिस फंक्शन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ए फर्स्ट अकरेंस. जो भी मिले यहाँ पे उसका एक ऐड करके ज्यादा कर दो. क्यों? क्योंकि एक ज्यादा करोगे तो क्या करेगा? उसके आगे से ढूंढना शुरू करेगा. यस और नो? Yes. तो ये यू हैव रिटन अ डायनेमिक प्रोग्राम. ये देखो, इसी को कहते हैं डायनेमिक प्रोग्राम. अब ये 7 दे रहा है. आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लो. आई विल गिव द सेवरल एग्जांपल. मैं डी का लेता हूँ. देखो डी का अगर मैं यहाँ पे डी रख दूं और यहाँ पे डी रख दूं तो ये प्रोग्राम अपने डी की कौन सी पोजीशन प्रिंट करेगा? सेकंड वाली. आप चेक Second करना one. चाहो तो चेक कर लो. ये देखो डी की पोजीशन चेक कर लो. Yes. 7 है. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रोग्राम को एक ही लाइन में लिखना. अच्छा मुझे बताओ, व्हाट यू आर डूइंग हियर? यू आर रनिंग दिस कोड एंड देन स्टोरिंग इन अ वेरिएबल वन इंडेक्स. यस और नो? Yes. तो आपको जब यू आर राइटिंग दिस कोड एंड देन स्टोरिंग इन अ वेरिएबल और इसी वेरिएबल को यू आर यूजिंग इन द सेकंड लाइन. यस और नो? Yes. तो आप ये काम नहीं कर सकते हो. इस कोड को यहाँ से उठाओ इतना और नेक्स्ट लाइन में जहां वन इंडेक्स लिखा है यहाँ लिख दो. तो आपका कोड एक ही लाइन में हो जाएगा. इस वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस और नो? यस. सो आप होता क्या है, व्हेन यू ट्राई टू सॉ एनीबॉडी एल्स प्रोग्राम यू जस्ट फियर. आप क्यों डर जाते हो? अरे ये क्या कॉम्प्लेक्स लिख दिया. अरे उसने वही किया है, किसी चीज को स्टोर करने की जगह वहीं पे यूज कर लिया. गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन सी आंसर विल बी सेम. गेटिंग माय पॉइंट? यस. Yes. अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको करना है असाइनमेंट. मुझे अपनी स्ट्रिंग में एग्जांपल लेना जिसमें ए 3 बार आया हो और मुझे अकरेंस चाहिए थर्ड वाली. कैसे करोगे? सेम तरीके से अपने को रिवाइड करना है. गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा. समझ गया कि नहीं समझ गए? Yes, Yes. सो दिस इज So, असाइनमेंट फॉर Pradeep, if we have like a Pradeep, we A first one, I mean, we are doing A plus, and again we have a 3 or 4 A again. Then what we will do? So I told you your assignment is to find the third one only. Or if I need to find 4th or 5th one, then Then you have to write the same logic. okay. Okay. You have seen Okay, that. so What I have done here? I have tried to avoid the first index. Yes or no? मैंने Yes. फर्स्ट इंडेक्स को अवॉइड किया. आप यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिख दो कि ये 3 इंडेक्स को अवॉइड कर दे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो एक्चुअली करना क्या बताऊं आपको? नहीं सर, हम ट्राई करेंगे एक बार सर. ग्रेट. दिस इज द स्प्रेड. I want to see today. ठीक है. तो देखो जब आप ट्राई करो, आपको मैंने एक हिंट दे दिया है. आपने एक के अंदर जैसे 2 निकाले, आप ऐसे मत करो. आप इस प्रोग्राम को हाँ. ऐसे ट्राई करना. पहले 2 अलग वेरिएबल बना के, है ना, एक साथ Okay. आप कंफ्यूज. तो ऐसे आपने पहले की इंडेक्स निकाली, फिर आपने किसकी इंडेक्स निकाली? दूसरे की. अरे इस इंडेक्स Yes. को अगले फिर मुझे एक लाइन में करके दिखाना, एक बड़ी सी लाइन में. ओके, लेट Okay. मी चलिए, लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. बट इट इज रियली इजी एंड यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग लॉजिक हियर. str1 डॉट. तो हमने इंडेक्स कर लिया, हमने अकरेंस भी देख ली. लेट मी कम टू द नेक्स्ट फंक्शन. is empty is very good. is empty का पर्पस क्या होता है? In your automation sometimes it is very very useful. You have to find that your some data is empty or not. Getting my point? So is empty का return type क्या होता है? Boolean. What do you mean by Boolean? It will give the result yes or no. अब मैं आपको दिखाता हूँ. क्या मेरी str1 empty है इस समय? People are saying that हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ऊपर चली No. गई है. empty नहीं है. देखो आंसर प्रिंट करते हैं, क्या आएगा? आंसर विल बी ट्रू. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बताने वाली है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट
आई एम गोइंग टू मेक दिस थिंग, मैं यहाँ पे जाता हूँ, हटा के एक स्पेस देता हूँ, इट इज आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स, देयर इज अ स्पेस, बताओ false, बताओ, क्योंकि स्पेस इज आल्सो कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर, स्पेस इज आल्सो ट्रीटेड एज ए कैरेक्टर। अगर मैं डबल कोट्स करूँ और कुछ ना दूं, देन इट विल कॉल्ड empty, True. Yeah, you guys are also. तो ये this is very important thing. इंटरव्यू पूछता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए. If I have given a double quotes and there is a space, आप बोलना space is not empty. Space is also a part of your keyboard. Space Yes. के लिए आपको कीबोर्ड दबाना पड़ता है, स्पेस करना पड़ता है, और जो भी कीबोर्ड से करते हैं that is a character. Okay, now is after is empty. Let me come. Okay, this is very good thing. Last index of, जैसे आपका इंडेक्स होता है वैसे लास्ट इंडेक्स। अब इसका भी देखो बेहतरीन फायदा क्या उठाते हैं। मैं जब भी इंडेक्स, जब भी कोई चीज सर्च कर रहा हूं, मैंने आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, लेट मी राइट हियर PRADEEP प्रदीपा, और कुछ भी और लिख देते हैं, चलो AD कैसे लिख देते हैं। मुझे आई वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ A बट फ्रॉम द लास्ट, मतलब मुझे समझ रहे हो क्या करना है, मुझे A का वो कैरेक्टर, आई वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ A बट फ्रॉम द सर्चिंग शुड बी फ्रॉम लास्ट। Last. तो अगर मुझे लास्ट से, तो यहाँ पे देखो लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, पहले मैं आपसे पूछूंगा तब बताऊंगा। पहले मैं लिखता हूँ str1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ A, मैं यहाँ लिखूंगा, फिर आपसे जब आंसर बताऊंगा तब देखता हूँ आंसर गलत रहता है सही, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टोर इन इंडेक्स। आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? चलो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग को थोड़ा छोटा कर देते हैं आप लोग के लिए, तो आप ढूंढते रहोगे। क्या आंसर आएगा A का? कोई बताएगा? फिर डर गया आप 7, लोग। 7. हाँ 7 बिल्कुल सही। आप, अरे मैंने प्रिंट क्या कर, इज एग्जिस्टमेंट कर दिया। आप लोग मेरी क्लास में आने से पहले ना एक ड्यू पी के आया करो, और मैंने ड्यू से कोई पैसे नहीं लिए हैं, है ना। ड्यू डर के आगे जीत है, नहीं तो मैं अपनी ड्रिंक एक बनवा के लॉन्च कर देता हूँ, कम से कम इस बहाने हर बैच में बिकेगी, तो महीने की 400-500 तो 400-500 तो बिक ही जाएगी, है ना। लोग सोचेंगे शायद Yeah, we will do marketing. We will do marketing on LinkedIn. ग्रेट ग्रेट, अरे अच्छी बात है। आफ्टर दिस सेशन आई विल टॉक समथिंग अबाउट द माय चैनल आल्सो, मे बी यू कैन हेल्प Okay. अस इफ यू रियली फाइंड इट। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले फर्स्ट थिंग इज रीडिंग इज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, लास्ट इंडेक्स देखो 7 आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पे, लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, बट दिस बैच इज रियली ऑसम कि आप में यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए। करते क्या यहाँ पे, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द लास्ट, लेकिन पोजीशन हमेशा कहाँ से होती है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होकर आंसर क्या दे देते हैं कि प्रदीप इसका आंसर आएगा 0। अरे 0 इसलिए नहीं आएगा, आई टोल्ड यू इट इज सर्चिंग फ्रॉम द लास्ट बट पोजीशन विल ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसने पहले A को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पोजीशन उसकी 7 मानी जाएगी स्टार्टिंग से। व्हेन आई विल से इफ आई राइट दिस प्रोग्राम, यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ जो लिखा है, अगर इसकी जगह मैं लास्ट इंडेक्स कर दूं, तो ये प्रोग्राम भी जो आपने लिखा है आपको कैसे लिखना है, लास्ट से चलने का। तो 2 असाइनमेंट हो गए आपको, मेरे लिए आपको लास्ट से दूसरा भी फाइंड करना है और फर्स्ट से भी दूसरा फाइंड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा मतलब Yes. थर्ड फोर्थ फिफ्थ थिंग। सो यू विल लर्न ग्रेट, ट्रस्ट मी। ऐसे ही आपकी प्रोग्रामिंग आती है। लोग सोचते हैं प्रोग्रामिंग कैसे सीखे, अरे प्रोग्रामिंग छोटी छोटी लॉजिक से आती है। ओके, तो चलिए ये आप करेंगे। नेक्स्ट, लेट मी कम टू द नेक्स्ट वन, str1 डॉट। हमने ये सीख लिया, लास्ट इंडेक्स। सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन सर देखो रिपीट कर दीजिए। सेकंड इज दैट यूजिंग इंडेक्स ऑफ, आप मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना कि मुझे अपने उसमें इसमें स्टार्टिंग से थर्ड A मिल जाए, समझ रहे हो, थर्ड जो थर्ड अक्रेंस है A की वो मिले, और लास्ट से भी आप ढूंढ के मुझे बताओ जो थर्ड अक्रेंस हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूं, इस एग्जाम्पल में A की अक्रेंस स्टार्टिंग से कौन सी है, थर्ड वाली, ये पहली है, इट इज सेकंड एंड दिस थर्ड, यस और नो? यस। Yes. I want to get the third occurrence in my string from the starting. This is one. Now another program, I want to get the third occurrence of the A, but from the last. So from the last कौन सी हुई, ये पहली, ये दूसरी, और ये। Getting my Yes. point? अगर Okay. आपको Yes. इसने 2 फंक्शन का लिए, ट्रस्ट मी, ऐसे प्रोग्रामिंग बिल्ड होती है। प्रोग्रामिंग के लिए ऐसा ना होता कि स्टार के पहाड़ बना देने हैं, वो तो आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, so we'll come one by one. चलिए str1, let me come back to here. Now replace length is important. str length, this is very important function. Reason is that whenever you want to get the number of alphabets, number of characters in your string, answer is length. तो ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर देता है, ध्यान रखना, स्ट्रिंग नहीं देता है, क्या देता है, कैरेक्टर। यानी कि आपके उसमें 10 है तो 10 देगा, इंडेक्स शुरू होगी 0 to 9, बट लेंथ इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर वही आएगा जितने आपके कैरेक्टर्स हैं। देख लो मेरे नाम में कितने कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर। अरे ये नाम ही प्रदीपा लिखा है ना, कोई बात नहीं। Pradeepa is one of my student also in my one batch.
ठीक है, चलिए, तो ये हो गया str.length। अब आते हैं नेक्स्ट पे, str1 डॉट। आज हम स्ट्रिंग क्लास ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे सोच रहे हैं। एंड वी विल कम टू देयर रीजन मैचेस लीव इट रिप्लेस। एक है रिप्लेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेस? रिप्लेस का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कि रिप्लेस का मतलब क्या है कि मैंने को अपने नाम में कुछ चीजों को चेंज करना है। जैसे मैं काम करता हूँ, लेट मी टेक द एग्जांपल, जहां जहां ए है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे? कुछ भी कर पी से कर देते हैं, किससे कर देते, ठीक है, पी से करते हैं कुछ लगे। तो जो फाइनल स्ट्रिंग होगी उसको पहले स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट मी यूज दिस वेरिएबल फाइनल स्ट्रिंग एंड लेट मी, तो ये क्या करेगा, every place which it will get the small a, it will replace with the n, it will store, and just see here, कर रहा है ना? Yes. तो जहां जहां इसको मिला वहां इसने कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ रिप्लेस। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इसका, ऑटोमेशन में ऐसी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। देन विल कम टू द स्प्लिट। स्प्लिट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्प्लिट का अगर कोई ध्यान से देखो, एनीबॉडी नो व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ स्प्लिट फंक्शन? किसी को पता है क्या बोलते हैं जो स्ट्रिंग स्क्वायर लिख के आ रहा है? Array. यस, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो जब तक मैं एरे नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब मैंने आई विल टेल यू एरे एंड आफ्टर दिस टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द एरे, और फिर मैं आपको ये फंक्शन बताऊंगा। इज इट ओके? Okay. चलिए, स्टार्ट इफ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको वो बता दिया है। अब बताता हूँ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग आल्सो इंपॉर्टेंट। सब स्ट्रिंग करता क्या है? सब स्ट्रिंग मींस it is actually going to cut a particular part from the string. It is something like that, cut contains। ऐसा क्या बोलोगे? कट कंटेन्स, मतलब जो भी कंटेन्स करता है उसको कट कर लो। कैसे? देखो, आप इसे इंडेक्स बता दो कहां से कट करना शुरू करना है, या कि प्रदीप लिखिए। इसको पहले थोड़ा अच्छा कर दें, नाम खराब कर दिया, PRADEE, अच्छा खासा नाम है, PRAD, ठीक है, PRADEE। अब मैं आई एम गोइंग टू राइट अ स्ट्रिंग, और जो भी स्ट्रिंग को कट करेगा आई एम गोइंग टू स्टोर इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल हियर। लेट मी राइट इट हियर। सो हम क्या करेंगे, इसमें बिगिन इंडेक्स देता हूं मैं 1। गैस करो व्हाट इट विल कट। ये एक इंडेक्स के बाद जितनी भी स्ट्रिंग है सारी कट कर देगा, एक से स्टार्ट करके। क्या प्रिंट कर रहा है? RADEE। Already. तो उसने क्या किया, R1 से स्टार्ट किया, 0 छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। Okay. तो अब इफ यू वांट टू गेट द डीप, मुझे दीप चाहिए था, प्रदीप में दीप चाहिए। सो व्हाट विल द स्टार्ट सब स्ट्रिंग? 0 1 2 3। ये देखो, so it will what it will do, it will take the starting index। ये starting index लेता है और आपको रिटर्न करता है। इसका एक फ्लेवर और आता है जो आपको starting के साथ क्या देता है, एंड भी देता है, ठीक है। so you will see there is another flavor, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं ना, begin index and end index। Yes. तो इसमें you can decide the end part also। एंड में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है। I will give the string। सर ये स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से नहीं लेता? नहीं, आप समझे नहीं, 0 से तो लेता है, लेकिन आपने उसको क्या बोला है, कहां से कट करने के लिए? 3 से। अगर आप 0 से बोलोगे 0 से कट कर देगा, चलो देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे सिस्टम में। ये लो 0, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के लिए डाउट लेने से क्या फायदा? ये देखो पूरा आ गया। अब लेकिन एक बात है, अरे 0 से करेंगे क्यों? 0 का मतलब तो पूरी मिल गई, STR1 ही ले लो ना। ठीक है, लेट मी मेक इट 3। अच्छा, मैं 3 करता हूं। अब मैं 3 से वो मिलेगी, आई एम गिविंग द एंड इंडेक्स। एंड इंडेक्स में ध्यान से देखना, मैं 5 दे रहा हूं। अब मुझे कौन बताएगा आंसर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आंसर आप गलत बताना, प्लीज जल्दी बोलो। हु इज गोइंग टू गिव द आंसर? बोलो, देखा, इंतजार करें, प्रदीप जल्दी से क्लिक करो। DE। वेरी। अब बताएगा कोई यहाँ पे, ये आंसर कौन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? कौन एक्सपेक्ट कर रहा था? DEE। कौन कर रहा था? अरे यार, मुझसे तो कम से कम ऑनेस्ट बोल दो यार। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ, चिंता मत करो। यूट्यूब पे मैं ये रिकॉर्डिंग डालता हूँ जो पूछ के डालता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ हैक हियर। इन द सब स्ट्रिंग व्हाटएवर इंडेक्स यू विल गिव एट द लास्ट एन इंडेक्स, वो लास्ट इंडेक्स से पहले वाले को कंसीडर करता है। लास्ट का मतलब टिल नहीं होता है। लास्ट का मतलब क्या होता है? वैसे हम बोलते हैं ना टिल, आपने सुना होगा ना, बोलते हैं टिल टुडे। टिल टुडे मतलब आज को भी इंक्लूड करो। यहाँ पे इसका मतलब टिल नहीं होता है, मतलब अगर आपने 5 दिए तो इंडेक्स कहां तक मानेगा? 4 तक, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ 6 दे दिया तो क्या प्रिंट करेगा? DEE। 3 से स्टार्ट करेगा लेकिन 5 पे रुक जाएगा। 6 का मतलब होता है 6 तक जाने का नहीं, 6 पे नहीं जाएगा, 6 के पहले। तो ये ध्यान रखना इंटरव्यू में। इन द स्टार्टिंग आई कैन रिमाइंड बिफोर 10 years कि जब इंटरव्यू पूछते थे बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। वो जब जो प्रैक्टिकल नहीं करता था, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं बताऊं क्या होता है इसमें। होता है कि स्टार्ट इंडेक्स जो आप देते हैं ये वहीं से शुरू करता है। जैसे मैंने आई स्टार्ट 3 मतलब ये 3 को कंसीडर करेगा, डी को कंसीडर किया। Yes. लेकिन अगर इंडेक्स जो एंड वाली देता हूं तो एंड वाले में से अपने आप मान के चलो एक माइनस कर देता है। तो अगर मैंने 6 दिया तो कहां तक जाएगा? 5 तक। तो ये हो गया आपका 3
ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये DEE प्रिंट करेगा, ना कि P और करेगा, ठीक है। Okay. तो अगर Okay, आपको sir. देखो P करना है तो देखो ध्यान से देखना P को, अगर मैं P को करता हूं तो यहाँ लिखता हूँ 7, अब ध्यान से देखना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे उसका टॉपिक मत पूछना, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा बाद में। मैं लिखता हूँ 8, अब देखो क्या होगा। अगर किसी ने जावा पहले पढ़ी है तो मुझे बताएगा क्या होगा। एक्सेप्शन आ गई, क्यों आ गई? 8 नाम की इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, मैक्सिमम Yes. क्या थी 7, तो एक That is- एक्सेप्शन आई है। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वन टॉपिक आई एम गोइंग टू हैंडल इन योर सेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो क्या होता है? दैट इज अ डिटेल टॉपिक ऑफ वन सेशन, सो आई एम गोइंग टू कवर एट दैट टाइम। आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। Yes. तो ये आपका हो गया, ये आपको सब स्ट्रिंग में बस याद रखना है। अब देखो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, मैं ओनर होता तो मैं तो कहता ऐसा मत करो, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लेकिन लिखने वाला जावा है, हम केवल यूजर है। हमारे घर में टेलीविजन आती है, हम ये थोड़ा कहते हैं भाई तूने बटन इस कलर का यहाँ क्यों बना दिया, इसको लेफ्ट में बना, वो कहेगा मत खरीदो सैमसंग LG खरीद लो, है ना। तो यू wherever sometime you are just like a user, not you are the owner। ठीक, कई चीजें मुझे, मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नहीं पसंद है और लॉजिकल है, मैं आपको प्रूव भी करूंगा, बट दे हैव डिजाइन, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो सब स्ट्रिंग वी हैव लर्न, सब स्ट्रिंग के दोनों फ्लेवर वी हैव सर लर्न। उसमें सॉरी सर उसमें 7 पे एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास 0 to 6 ही है ना। इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखो जीरो हमने इसलिए दिया क्योंकि मैंने उससे 7 बोला, लेकिन वो कंसीडर कहां तक करता है? 6 तक, एक पहले, तो 7 उसने ढूंढा ही नहीं, अगर ढूंढा नहीं तो उसे एरर नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, ओके, है ना। एक्चुअली तो यहाँ पे 7 भी नहीं थी, लेकिन मेरे प्रोग्राम में उसने 7 तो ढूंढा नहीं, वो तो 6 पे रुक गया, मैंने बोला ना, सो दैट्स व्हाई इट हैड नॉट गिवन एनी। चलिए अब करते हैं str1, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कुछ फंक्शन है आपके, ये कैर एरे भी मैं आपको उसी समय बताऊंगा, जब तक एरे नहीं बताता हूँ। लोअर केस बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, क्या करता होगा, जो भी मैंने दे रखा है उसको क्या करता होगा, Lower case. Lower case में. लोअर केस में करता है। तो कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपन दैट यू नीड दिस फंक्शन टू टेस्ट योर थिंग। देखो कोई टेस्ट डेटा आपको नहीं पता है, सपोज टेक द एग्जांपल, आपको वैलिडेट करना है आपके एग्जांपल में कि इन योर डेटाबेस इन द रिकॉर्ड देयर इज रिटन प्रदीप एंड यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द इट इज रिटन इन द स्मॉल और कैपिटल। तो आप देखो कितने केस बन सकते हैं ना, आप सारे केस तो चेक नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो किसी ने प्रदीप ऐसे लिख दिया, मान लो लिख सकता है, आपको वेरीफाई ये करना है कि जो वहां वैल्यू है वो प्रदीप होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि किसी केस में लिखी हो। अब कोई मुझे बताएगा कैसे लॉजिक कर सकते हैं? बताए कैसे लॉजिक करेंगे? कहीं पे भी लिखा हो, मैं उसको यहाँ से किस में कन्वर्ट कर दूंगा, लोअर केस। Lower case में. और लोअर केस कन्वर्ट करने के बाद मुझे कंपैरिजन के लिए पता है क्या, कि अगर ये लोअर केस में हो गई तो मैं तो कंपैरिजन उसका केवल किससे करूंगा, अपना लोअर केस से। वो क्या करेगा, जो भी आ रही होगी लोअर केस से बदल देगा, मैं लोअर केस से कन्वर्ट कर लूंगा, कंपेयर। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे लॉजिक सीखोगे आप। अच्छा, ये मैंने पहले इसको कमेंट कर दें, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, इसको सही कर दें, ये मुझे चलाने नहीं देगा वरना प्रोग्राम। सो लेट मी रन इट। प्रदीप प्रिंट किया इसने, क्योंकि इसने क्या कन्वर्ट कर दिया इसको, Lower. अब देखो चाहे ये डेटा वहां से कैसे भी आता है, कितना भी वो कहते हैं ना गार्बेज बन के आए, P स्मॉल, A स्मॉल, D स्मॉल, बड़ा छोटा, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, अगर कोई मुझसे कहता है मुझे कंपेयर करना है कि प्रदीप आना चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया लोअर केस में। अब मैं क्या करूं, डॉट इक्वल्स स्मॉल से चेक करा लूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कन्वर्ट करके वो ये बन जाना चाहिए। यस और नो? Yes. अगर ये बन गया तो मेरा एक्चुअली, मैंने लॉजिक जानते हो क्या लिखा है, आप मुझे प्रदीप किसी भी केस में दो, मैं चेक कर लूंगा वो प्रदीप है कि नहीं है। यस और नो? Yes. क्योंकि मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, अब वो मेरे केस में आ गया, मैंने अपने से इक्वल करा लिया। दिस इज कॉल्ड लॉजिक। तो ऐसे हम लॉजिक करते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पे, str1। लेट मी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। स्प्लिट में आपको तभी बताऊंगा, लोअर जैसे लोअर है वैसे अपर है, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ट्रिम, किसी को पता है ट्रिम क्या होता है? इफ यू हैव लर्न द एसक्यूएल आल्सो, एसक्यूएल में भी एक फंक्शन होता है, Space remove कर देता है. यस, एसक्यूएल में जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड, टू फंक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलट्रिम एंड आरट्रिम। अगर किसी ने एसक्यूएल पढ़ी है ना, और एसक्यूएल पढ़नी चाहिए, यू आर द टेस्टर्स, सो यू कैन से एसक्यूएल इज द बेस्ट वेपन फॉर अस। हमको अगर टेस्ट डेटा निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हमें क्वेरी का डेटाबेस तो चाहिए, तो वहाँ पे आपको हमेशा याद करना चाहिए, तो वहाँ पे एसक्यूएल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया, मैं आपको अभी शेयर करूंगा कि क्या क्या आप मेरे चैनल से उठा के अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्रिम करते हैं। ट्रिम में क्या करते हैं, फाइनल स्ट्रिंग में करते हैं। तो अभी तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रिम के लिए नहीं। मैं आपको ट्रिम के लायक बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, प्रदीप के आगे कुछ स्पेस डाल देता हूँ और प्रदीप के कुछ आप पीछे। ये क्या करेगा, ट्रिम क्या करता है, चाहे आगे कोई स्पेस हो या पीछे, उसको क्या कर देता है, हटा देता हटा. और अगर मिडिल में हो तो मिडिल में नहीं हटाएगा, क्योंकि मिडिल में वो मान के चलता है कि मिडिल Character. का तो मतलब उसमें भी कुछ होना चाहिए ना फॉर्मूला।
हाँ नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक यूजर क्या है, मैं अपना नाम लिखूंगा प्रदीप चंद नेहलवाल, ठीक है। जनरली जो मिड में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मिड में क्या लिखते हैं, इंटेंसली लिखते हैं। लेकिन आपकी बात एक जगह एग्री है, कभी कभी कोई गलती से क्या करता है, एक की जगह 2 स्पेस कर दी। Yes. तो एक्चुअली अब आपने क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, पक्का आपसे पूछेगा, आप ही ने छेड़ा है ना, अब पूछेगा वो कहेगा कि मुझे मेरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी एक साथ 2 स्पेस दिखे, उनमें से एक को हटा दो। समझ रहे हो? हाँ. अब देखो रिप्लेस ऑल का आप इस्तेमाल तो कर सकते थे, लेकिन आप फंस जाओगे। अगर आपने रिप्लेस ऑल का किया तो वो सारे रिप्लेस कर देगा। Yes. आपको ये फाइंड करना है कि जहां पे 2 रिप्लेस एक साथ स्पेस मिले उसमें से एक हटा दो। ये असाइनमेंट जो करेगा वो उसको मैं बोलूंगा बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। करेंगे ट्रिम, देखो क्या करेगा, फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूं, लेट मी रन इट। प्रदीप चंद नेहलवाल किया, ठीक है। इसमें Yes. आगे पीछे का जो है इसको प्रिंट यहाँ पे रिमूव कर रहा है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं ऐसे दिखा सकता हूं आपको प्रूफ करके कि मैं यहाँ पे प्रिंट करते वक्त जबरदस्ती इसके आगे पीछे कुछ लिख रहा हूँ। एक लिखता हूँ मैं कोलन, है ना, और इसके बाद प्लस करता हूँ, फिर कोलन लिखूंगा। अब अगर स्पेस नहीं होगा तो कोलन के बाद स्पेस नहीं दिखेगा, सही कह रहा हूँ? Yes. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, आई एम प्रिंटिंग। तो अभी देखना आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इसके बाद दिख रहा है कि कुछ भी स्पेस नहीं है ना। अब यहाँ पे स्पेस है ही नहीं, लेकिन अगर मैं लगा भी दूं तब भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या करेगा उसको, Remove. यस यू गाइस आर ऑसम। ये देखो, और अगर मैं इसको ट्रिम नहीं लगाता तो देखो कैसे प्रिंट करेगा। अगर मैं इस लाइन को नहीं करता, यहाँ पे str, ओ सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पे str करना पड़ेगा विदाउट ट्रिम। अगर मैं करता हूँ तो देखो आंसर क्या प्रिंट होगा। तो कभी कभी इसका भी बहुत यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट str1 डॉट, यहाँ पे अपर हो गया, ट्रिम हो गया, और ये इसके बाद आप छोड़ दो, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इस पे आपका यू शुड बी हैंड्स ऑन, ताकि आप यू कैन राइट डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और मैं आपको एडवाइस दूंगा इसको करने के साथ साथ आप पुरानी जावा को रिवाइज कर। इफ यू हैव डिडंट गेट अ चांस टिल नाउ, प्लीज रिवाइज दैट। जैसे जैसे जावा बढ़ती जाएगी आपके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट?